Hello, dear audience. This is Ritika Bose extending a warm and hearty welcome to all of you on behalf of Redcliffe Labs. Today, for this session, we have with us Dr. Mayanka Lodha Seth, and we will take this session ahead with her. थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग इन। हमारे साथ हमारी ऑडियंस भी धीरे धीरे जुड़ ही रही है, तो हम इंतजार करते हैं एक आध मिनट का और फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और आपसे जानेंगे इंटरेस्टिंग कहानियां अराउंड होली एंड हाउ वी कैन मेक दिस होली हेल्दी। विथ यू वी विल नो मोर। I'm sure, Ritika. I think आपके साथ ये होली डिस्कशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है, and we are going to enjoy our chats, and I'm sure you are going to make it very interesting, just like all the chats which we have. आई एम श्योर हमारे साथ धीरे धीरे ऑडियंस जुड़ ही रही है, तो जैसे ऑडियंस जुड़ती है, ऑलमोस्ट जुड़ ही चुके हैं लोग, और भी लोगों को मैं जो भी हमारे ऑडियंस हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़िए। और आपको अगर होली के अराउंड कुछ भी सवाल हो आपके मन में, आप जिसको जानना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। डॉक्टर मयंका लोधा सेठ हमारे साथ जुड़ी हुई है और वो आपके सारे क्वेश्चंस आंसर करेंगी। तो इस बार रेडक्लिफ लैब्स सेलिब्रेट कर रहा है सेहत के रंग रेडक्लिफ के साथ। तो हम ये लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि होली आप मजे कीजिए, आप एंजॉय कीजिए होली, बट इंश्योर कीजिए कि आप हेल्दी रहे, आपके सेहत का भी आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। तो उसके लिए आज का ये स्पेशल सेशन, और हम आज के सेशन में जानेंगे कि किस तरह से इस फेस्टिवल को खाते पीते एंजॉय करते वक्त भी हम अपने हेल्थ का ख्याल रख सके। सो मैम, ओवर टू यू। आपसे जानते हैं कि होली साइंटिफिक किस तरह से है। होली की सेलिब्रेशंस मैंने सुने कि काफी मतलब साइंस इज बिहाइंड द सेलिब्रेशन ऑफ कलर्स, देयर इज लॉट ऑफ साइंस। कहावत है, जो भी हमारे जो कहानियां हैं हमने जो सुनी है होली के अराउंड, तो उसके पीछे कोई ना कोई जो माइथोलॉजिकल कहानियां हैं, जो भी ये हम बचपन से सुनते आए हैं, इसके पीछे इन स्टोरीज के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन भी है। तो क्या आप वो हमें आज बता सकते हो? Yeah, definitely, Ritika. You're very right in saying that we all know Holi is such a vibrant festival of colors, but yes, it's very fascinating to learn that Holi's traditions, all the traditions of Holi, they have deeply rooted scientific basis. So, in addition to so if you take any story, you take the story of Holika and Pralaji, for example. Holika thought she was fireproof, but in the burnt, and Pralaji was saved. But beyond mythology, during these times of self, it has a purifying effect on the environment. And when temperatures are changing, many viruses and bacteria they get activated, and we see around us there's so various virus bacteria related diseases. So when we stand around this bonfire, then the temperature which is created that helps protecting our status for our health during this time of the year. Another playful story, like we know Krishna Bhagwan and Radha. So Krishna Bhagwan used to be worried about the complexion, the dark complexion, and so on his mother's advice, he smeared Radha as well. So back in those days, throwing colors, we believe that the tradition of throwing colors came from this story. So when in those days the colors were very healthy, they had very healthy ingredients like turmeric, palash, and neem. So they have skin-friendly properties. So if we use natural colors, then they are very helpful for the skin as well. Then Holi and all the other examples of other festivals also, they create a specific and a sense of connection. There's laughter. So, all these celebrations they trigger dopamine release. So we all know that dopamine is a happy hormone. So it goes a long way in creating emotional and mental well-being also. Dopamine is secreted, you feel well. So it's good for our mental health also.
festivities. So it's like amazing that year-old traditions, they make so much sense even today. एक्चुअली और अभी जैसा आपने मेंशन कि ये सीजनल चेंज हो रही होती है, इस Yeah. टाइम पे लोगों को वायरल होते रहते हैं। तो आई थिंक होली में जब हम ये होलिका बर्न करते हैं, या जो हमारा जो है जो कल्चरल रेलेवेंसी है वो बहुत Yeah. साइंटिफिक है, बिकॉज इट क्लिंसेस एंड प्यूरिफाइज द एनवायरनमेंट एज वेल। ये जो वायरसेस होती हैं वो भी कम हो जाती है। तो आई थिंक जो जिन्होंने हमारे जो वेदास हैं, जो हमारे कल्चर है, वो डिजाइन ही काफी साइंटिफिकली की गई है ताकि हम सेफ रह सके, हेल्दी रह And if सके। I may add, all these festivities, they are, people are playful, people enjoy in the sun. So even vitamin D booster की तरह काम करता है all these celebrations, and everybody knows that vitamin D is very, very important for boosting the immunity. So all these festivities have deep as well as scientific base. एक सवाल ही आ गया है, हम सेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास सवाल आ रहे हैं। मैडम, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, कफ और कोल्ड हो रहा है, बॉडी को हेल्दी कैसे रखें? एक्चुअली हर जगह मतलब द वायरल इज देयर, एंड दिल्ली में तो काफी ज्यादा है। तो मैम, लाइक इफ यू कुड आंसर दिस क्वेश्चन। डेफिनेटली, दी मेनी वायरसेस, हम देखते हैं कि विंटर एक हेल्दी सीजन की तरह होता है, लेकिन ये बहुत कम बीमारियां विंटर्स में, एंड सडनली जब टेम्परेचर्स बढ़ने लगते हैं तो एक टेम्परेचर रेंज बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरियाज एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये चेंजेस आ रहे होते हैं, प्रिकॉशंस कम रखते हैं हमें के लिए, या हमारी इम्यूनिटी है, या हमारा न्यूट्रिशन स्लो है, या धनाधन मतलब हुई बट वी आर ईटिंग कोल्ड, chilling, creating environment that help activate viruses जो कि अब तक नहीं थे activated. So basically ये सारे जो precautions है, you have to have healthy meals, unhealthy food नहीं, and जो आपका temperature, जो food आप जिस temperature immunity आपकी अच्छी रखें, तो definitely over को maintain रखने में मदद करती है। तो आई थिंक इसके बाद लाइक अभी जो काफी लोगों को वायरल हो रहा है, या मतलब दे आर इन्फेक्टेड, ये होली के बाद धीरे धीरे वो ठीक होने लगेगा, आप बोल रहे हो? हाँ, बिल्कुल ठीक होने लगेगा। होली के टाइम कुछ पोलन भी रिलीज होते हैं एक्चुअली एनवायरनमेंट, वो भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है। तो जो लोग होते हैं, जो सेंसिटाइज होते हैं ऑलरेडी, जिनको एलर्जी है, वो एक्सपोजर टू द पोलन की वजह से भी एलर्जिक रिएक्शंस और फिर सुपर ऑन देम, ये बहुत कॉमन है। तो यस, होली के टाइम चीजें सेटल होने लगती है, टेम्परेचर एक तरह से सेटल होने लगता है, पोलेंस कम हो जाते हैं, तो धीरे वापस से आपका इम्यूनिटी वापस से या मैम, सो अक्सर अभी देखा है हमने, होली जैसे अभी सबको होली के रंग में रंग जाते हैं, मौज मस्ती एंड एवरीथिंग। सो जो ये कलर्स होती हैं, हाउ डू दीज कलर्स इम्पैक्ट द स्किन? यस, कलर्स वो एक्चुअली सिंथेटिक कलर्स बहुत आजकल आने लग गए हैं, तो वो आपकी स्किन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। अगर नेचुरल कलर्स हैं तो डेफिनेटली आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं करते हैं। जैसे कलर्स अगर आपके टेसू के फूल से बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ सैंडलवुड और नीम और थिंग्स लाइक टर्मरिक, beetroot extracts, all these, they are in fact good for your skin. But these days synthetic colors are used at many non-synthetic organics, जिसमें भी synthetic है. So they contain a lot of heavy metals like chromium, mercury. They might contain powders of glass powders, what we say. They contain silica and asbestos and mica and whatnot. So all these synthetic colors basically, they tend to harm your skin, and if they can irritate your eyes, or they can cause harm to your hair, they can cause dryness, and so synthetic colors need to be avoided, and to opt for the natural colors, herbal colors, then you can enjoy without any fear of damage.
इनफैक्ट आपने बहुत अच्छा बोला कि बीट रूट को या सैंडलवुड को, हल्दी को हम लोग अगर वो यूज करें एज कलर्स, वही सेम रेड पिंक वो व्हाइट के साथ हम मिक्स करके पाउडर्स वगैरह भी हमारे पास आती है, जो हर्बल पाउडर्स होती हैं, हर्बल कलर्स भी आने लगी हैं, तो आई थिंक दैट कैन प्रोटेक्ट आवर स्किन एंड काफी सही होगा। आई थिंक आई डू दैट। और मैम कुछ लोग ऑब्वियसली हर किसी के पास इतना नहीं होता कि वो बैठ के अभी हर्बल कलर्स यूज करे, तो अब इनफैक्ट हर्बल कलर्स यूज करने के बाद भी कुछ लोगों के स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो बिफोर गोइंग आउट टू प्ले होली or play with the colors, what precautions should they take especially for their skin? Yeah, you can take precautions. In fact, हमारे बड़े बूढ़े के दिन बाहर जाके लगाओ, 2 in the morning यही काम होता है कि हाथ पे तेल, सब जगह तेल. So basically, you can use any oil. It's very right. The oils. You cannot use almond oil, mustard oil, or whatever natural oil you have, and just keep it nice, arms and legs, and it will be a protective layer which will help against the colors. Basically, those layers. You can take moisturizer and put it on your face, around. Then you can use full sleeves clothes or lowers which are full length. So all these things will increase exposure to colors because you're not sure what others are using. You might use colors for others, but you're not sure whether others are using natural or not. So it's better to be covered, fully covered, and get protective layers on your skin. And even when you're, removing the colors, you should always use mild soaps. And after removing the colors, use aloe vera gels or moisturizers to decrease dryness. So these are, small little precautions, and you can enjoy your Holi like anything. तो हम जैसे आपने अभी बताया कि लाइक स्किन के बारे में हम बात ही कर रहे थे, तो बहुत लोगों को एलर्जी होती है, पहले से ही होती है, एंड दे डू नॉट Right. नो कि दे आर एलर्जिक टू सो एंड सो थिंग। बहुत लोगों को डस्ट एलर्जी होती है। हाउ कैन पीपल नो इफ दे आर एलर्जिक टू डस्ट और दे आर एलर्जिक टू दीज फाइन पार्टिकल्स? कलर्स से भी क्या होता है, वो भी तो डस्ट फाइन पार्टिकल्स ही होती है। अक्सर जब हम गुलाल उड़ाते हैं आसमान में, बहुत लोगों को छींकें आने स्टार्ट हो जाती है, वो चीखते ही रहते हैं एंड दैट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। एंड अक्सर हमने देखा कि होली के बाद लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती है। तो आर देयर पर्टिकुलर मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू नो इफ समबडी इज एलर्जिक टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट और इज एलर्जिक टू समथिंग? वो क्या कोई टेस्ट के थ्रू या कुछ करके हमें पता चले पहले से ही कि हम हाँ इस चीज को एलर्जिक, हम इस चीज, ये चीज हमारे ऊपर रिएक्ट करती है, हम एलर्जिक हैं, तो हम इसे अवॉइड करें, ऐसा कुछ है? Yes, definitely. The test name is IgE, immunoglobulin IgE. So basically, ये identify कर a individual allergic has allergic tendencies or not. So basically, if your IgEs are high, then you can go for specific tests. Then you can identify the allergen that is specific. So basically, IgE एक tendency अगर high बताता है कि आप तो एलर्जिक है, और फिर अगर आईजी और बैटरी अकॉर्डिंग टू योर हिस्ट्री वी कैन चूज टेस्ट कि अगर आपको इन्फेक्शन से है एलर्जी या ये जो टचिंग से है किसी चीज से, कॉन्टैक्ट से है, या तो वो सब चीजें, या किसी फूड की इन्फेक्शन से है, तो ये सब चीजें है। बट अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल हिस्ट्री वी कैन चूज अ बैटरी टेस्ट दैट कैन आइडेंटिफाई। एक क्वेश्चन है मैम, कलर्स मेक माय स्किन इची एंड ड्राई, व्हाट कैन आई डू टू प्रिवेंट दिस? प्रिवेंशन के लिए जैसे मैंने बताया कि अगर ऑलरेडी नोन जो जनरल प्रिवेंशन है वो तो हमने अभी डिस्कस किए, जैसे पुटिंग ऑयल, जेली, मॉइस्चराइजर, ऑल दी। बट अगर आपको पता है कि आप ऑलरेडी एलर्जिक हैं, बेटर टेक एंटीहिस्टामिनिक बिफोर हेडिंग आउट। आप पहले से एक एंटीहिस्टामिनिक खा, और अगर आपको पता है कि आपको इनहेलेंट एलर्जी है सपोज, तो आप मास्क लगा के जाइए पहले से। यू कैन कवर योर आईज विद शेड्स, यू कैन यूज इवन वो स्विमिंग वाले ग्लासेस यू कैन यूज, या फिर ग्लासेस आते हैं स्पेशली फॉर कलर, वो यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि मुझे
इनहेलेंट एलर्जी है तो आप मास्क लगा के चाहिए। बट यस, कि नॉन एलर्जिक हैं तो आपको जो मेडिसिन चल रही है वो आप मेडिसिन पहले लीजिए एंड देन गो। तो यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस अकॉर्डिंग टू व्हाट ऑफ एक्सपोजर यू हैव। मैम अगर जैसे हमने देखा बहुत लोग एस्थमेटिक होते हैं, तो उनको ये कलर्स किस तरह से उनके लिए रिएक्ट करती हैं, या उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? Actually, gulal, dry colors and especially synthetic gulals, they have silica, asbestos, and mica particles, small little mica particles. So, whenever these colors are inhaled, they induce this allergic reaction, which can cause breathing problems, coughing, sneezing, all these things. And sometimes uh, there's chest congestion also. So, and even liquid colors like sprays and aerosol and few liquid colors, they contain sometimes solvents like benzene or toluene. These are inorganic solvents. So they, when inhaled, they can cause severe irritation to your bronchial tree. So it's definitely important that if a person is already asthmatic, even fumes from the holika dahan thing, वो जो स्मोक है अवॉइड करना चाहिए, ड्राई कलर्स को अवॉइड करना चाहिए, स्प्रेइंग पिचकारीज जो डायरेक्टली आपके फेस को अवॉइड करना चाहिए। सो ऑल दीज, ये सारे प्रिकॉशंस आपको पड़ेंगे। एंड टेक योर मेडिकेशंस हेडिंग आउट, जो आपके प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर कलर्स से हो ही जाता है, सपोज यू गेट breathing difficulties and everything, then you need to stay away from the colors, dry colors, and move away from the dry colors as possible. Put a damp. कुछ लोग होते हैं बहुत स्नीज करते हैं जब भी, जैसे होली पार्टीज वगैरह में जाते हैं, देव सीन है कि वो स्नीज करे ही जाते हैं। उनको मास्क इज इट बिकॉज ऑफ सम एलर्जी? यस यस, बिकॉज अस्थमैटिक्स जो जनरली है उनमें ट्रिगर्स होते हैं, ये सारे स्मोक है वो ट्रिगर है, ड्राई गुलाल पाउडर वो ट्रिगर है, जो बेंजीन है या ये सारे सॉल्वेंट्स है, ये सब ट्रिगर्स हैं। तो ये सारे आप ट्रिगर कर देते हैं तो वो एक्सेसिव स्नीजिंग, ब्रेथलेसनेस, इरिटेशन, ये सारी चीजें सिम्टम्स उनमें डेवलप हो जाते हैं। और हमेशा कभी भी जब ये ज्यादा हो जाए ना, तो आप डैम्प क्लॉथ अपने मुंह पे रख लीजिए, वो बहुत सारा एक्सपोजर बचा लेता है आपको। या फिर आप स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं यूकेलिप्टस ऑयल के साथ, या इवन नॉर्मल स्टीम इनहेलेशन, वो भी एयरवेज को क्लियर करने में हेल्प करता है। तो ये सारे प्रिकॉशंस चाहिए, और इनहेलर्स तो यूज करने ही, अगर आपको लग रहा है कि ये सब करने के बाद भी नहीं सिम्टम्स में रिलीफ है। मैम इनफैक्ट होली के दौरान पूल पार्टीज भी काफी कॉमन होती है। हम देखते हैं कि अक्सर जो आसपास लाइक हर सोसाइटी में स्विमिंग पूल में होली पार्टीज हो रही होती हैं, और वहां पे वो लोग बहुत सारे कलर्स डालते हैं एंड एवरीथिंग, देयर इज लॉट ऑफ फन गोइंग ऑन। ऑब्वियसली होली है भाई, पुराना मानो होली है, तो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं पानी में। बट अक्सर हमने देखा है जो वहां पे जो केमिकल्स वो यूज करते हैं उस पानी में टू ब्रिंग दैट कलर एंड ऑल, वो रिएक्ट करता है स्किन के। और मतलब क्या क्या पोटेंशियल स्किन रिस्क है, या क्या क्या रिस्क है जो हो सकता है बिकॉज ऑफ दोज कलर्स? लाइक अगर कोई एक कलर, हम एलर्जिक हैं और हमने बाई चांस लाइक स्विमिंग करते वक्त अक्सर होता है कि पानी हमारे अंदर चली जाती है और हमारी स्किन को तो वो डायरेक्ट वो टच कर ही रही है, तो क्या हेल्थ रिस्क हो सकते हैं उनके? सिम्टम्स कैन वेरी, किसी को बिल्कुल सिम्टम्स नहीं, किसी को थोड़ा सा मे बी इचिंग हो गई रह उतना हो गया, किसी को इचिंग के बाद रेडनेस और स्वेटिंग, किसी को मतलब आई में इतने इरिटेशन हो जाता है कि आईज, और इसका जो हाईएस्ट लेवल है जिसको मैं बोलते हैं, कई बार वो भी हो जाता है कि पूरा फेस स्वेलिंग हो गया, ब्रेथलेस हो गया, टैकीकार्डिया हो गया। सिम्टम्स कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल्स एटोपिक टेंडेंसीज। फर्स्ट एड मेजर्स में भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर स्किन है तो उसको वार्म ल्यूकवार्म से आपने धो लिया, अगर उसके बाद भी नहीं है माइल्ड यूज कर लिया, उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो आप लैक्टोजन लोशन अप्लाई कर लीजिए। स्टिल अगर ईचिंग परसिस्ट कर रही है, यू कैन गो फॉर ओवर द काउंटर एंटीहिस्टामिन। अगर और भी ज्यादा है तो डेफिनेटली मेडिकल। इन द सेम वे अगर आईज में कलर चले गया है, you can wash the eyes with you can put lubricating drops, जो artificial tears what we call, you can go for them। लेकिन अगर impairment लग रहा है तो definitely medical help चाहिए। In the same
अगर वो पूल पार्टीज जैसे कि आप कह रहे हैं तो काफी सारा जला, और कि पानी पहले तो नहीं जाए, आप मुंह में तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि ज्यादातर वो केमिकल्स वाला पानी, लेकिन अगर चले भी गया विथ lukewarm water, and मोस्ट इम्पोर्टेंटली डोंट ट्राई टू इंड्यूस वार्म। कई बार हमें लगता है कि हम vomit कर दें तो निकल, तो फिजिल ट्रैक जो है उसको हार्म हो सकता है क्योंकि उसमें कई केमिकल्स। So better to, drink a lot of water or maybe some other drinks so that toxicity dilute हो सके. So it depends according to the symptoms that take the measures. मैम, डू दीज कलर्स ऑल्सो, या जब होली में हम बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो जाता है, हम स्विमिंग करने चले जाते हैं, हम पानी में डांस कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा बॉडी को एक्सर्शन हो जाती है, तो क्या उससे मसल्स को भी स्ट्रेन होती है या मसल्स में भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? एक्चुअली ओवर एक्सर्शन सबसे ज्यादा जो दो चीजें करता है वो है, एक तो आपको डिहाइड्रेशन करेगा और एक आपका इलेक्ट्रोलाइट डिस्बैलेंस करेगा। ये दो चीजें सबसे पहले होती है और यही दो चीजें हैं जो हमारी पूरी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करती है। So you have to stay protected against dehydration at any cost in Holi celebration, or any celebration or any gathering. मेरा नेक्स्ट सवाल वही होने वाला था कि मैम फिर हम अपने आप को हाइड्रेट कैसे रखें, बिकॉज जब हम पार्टी में होते हैं हम लाइक ऑब्वियसली वी कीप ऑन ड्रिंकिंग, ठंडाई तो है और फिर वहां पे बाकी ड्रिंक्स होती है तो हम पीते ही रहते हैं, बट ऑब्वियसली आर दे गुड इनफ टू कीप आवर बॉडी हाइड्रेटेड? एक्चुअली हाइड्रेशन का ये सीन है कि आप सबसे पहले जब घर से निकलेंगे तभी आपको फुली हाइड्रेटेड जाना है। यू हैव टू हैव लॉट ऑफ साइट्रस फूड्स हैं, अभी कुकम्बर, ऑरेंजेस है, सब घर में रेडी अवेलेबल होता है। आप अच्छे को पीजिए, 2-3 ग्लास पानी पी जाइए। Try to avoid carbonated and caffeinated. Definitely alcohol to be avoided because they cause dehydration, super added dehydration जो already है उसकी वजह से caffeine and alcoholic drinks all the more damaging होते हैं। Then अगर आपको बहुत ही दर्शन डिहाइड्रेशन हो रहा है, बेटर है आप ORS रखें, एक ग्लास में एक ORS में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस काफी हद तक कम कर, बट अदर sources of hydration like coconut water है, आपके दूसरे cucumber juices है, fresh है, carrot, maybe beetroot juice है, there are good drinks that you can go for, but keep yourself hydrated, जो भी आपको measure सही रखे। अब कुछ हो या ना हो, आई एम श्योर कि ठंडाई तो हर पार्टी में होती है, लाइक होली मीन्स ठंडाई, हम लोग बाकी सब भूल जाते हैं, बट ठंडाई इज अ मस्ट। तो इस ठंडाई को हम हेल्दी किस तरह से कर सकते हैं, आप थोड़ा अगर हमें बता सके कि हाउ टू मेक अ हेल्दी ठंडाई? ऑब्वियसली रेडक्लिफ है, हम जब बात कर रहे हैं सेहत के रंग के बारे में, तो और ठंडाई वी कैन नॉट मिस आउट। आई तो कैन रियली इमेजिन लाइक होली पार्टीज वगैरह तो आज से स्टार्ट हो गई होगी एंड ठंडाई इज अ मस्ट। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होगी जहाँ पे ठंडाई नहीं होगी, तो इस ठंडाई को हेल्दी हम किस तरह से कर सकते हैं? ठंडाई ठंडाई एक अच्छा कॉम्बिनेशन है व्हेन प्रिपेयर्ड इन अ गुड वे। ठंडाई हैज मिल्क, very good spices like fennels and cardamom. So ठंडा very popular and a very healthy drink. But उसमें जब अगर भांग नहीं ऐड होनी चाहिए, सब इम्पोर्टेंट जो अक्सर हो जाती है, you should not make it ये इंटॉक्सिकेशन नहीं होना चाहिए उसमें। This intoxication definitely मल्टीपल होते हैं। एंड सेकेंडली जो ठंडाई का कंटेंट है उसको लिमिट करना, बिकॉज कई बार जो ठंडाई सर्व होती है एक्सेसिवली सिंथेटिक शुगर्स उसके अंदर एडेड होते हैं। So better if you're making thandai at home, go for natural sweeteners like good synthetic, and it should be then dilution of the another way by which, because जितना ज्यादा थिक होगा ऑब्वियसली शुगर उसका जो वो ज्यादा होगा और वो डिहाइड्रेशन करेगा उल्टा अगर बहुत ज्यादा, तो it has and dilution with water is necessary if it is too thick. So way you can go for Thandai and enjoy health. And
वो हमारे ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए ये मैसेज है कि इस बार आप ठंडाई पिए, भर भर के ठंडाई पीजिए, बट जो रेसिपी अभी डॉक्टर मयंका ने शेयर किया है उसे फॉलो कीजिए, उसको डाइल्यूट कीजिए अच्छी तरह से, उसमें दूध और पानी भर के डाल के उसमें ड्राई फ्रूट्स भर दीजिए। आई हैव ऑल्सो हर्ड गुलाब डालते हैं, गुलाब की पंपड़ियां डालते हैं, पेटल्स डालते हैं। वो तो वो मैम गुलाब की पंपड़ियां, हाउ आर दे हेल्दी फॉर आवर हेल्थ, एंड हाउ डू these rose petals, I have heard they have a lot of good या benefits. How are rose petals healthy? या रोज पेटल्स उसका बहुत ही नेसेसरी इंग्रेडिएंट है ठंडाई का। वो फ्लेवरफुल तो बनाते ही है ठंडाई को, बट दे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज एज वेल। दे Okay. आल्सो डिहाइड्रेशन इन अ वे। सो गुलाब की पंखुड़ियां सब प्लस प्लस ही है, बेनिफिशियल है। इनफैक्ट मैंने ये भी सुना है कि वो हमारी बॉडी को कूल भी करती है, दे हैव अ यस, कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी। तो डेफिनेटली उसका तासीर है हिंदी। कुछ की तासीर ठंडी होती है, फिर गर्म होती है। तो गुलाब की पंखुड़ियां वो कम्स इन द अदर लिस्ट जिनकी तासीर ठंडी होती है, तो दे डेफिनेटली हैव अ कूल। ओके मैम, होली मतलब ऑब्वियसली फ्राइड पकवान होते हैं, पकोड़े होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, सब कुछ लाइक यू नो सब कुछ एक्सेसिव में ही होता है, एक्सेसिव फ्राइड पकोड़े, एक्सेसिव स्वीट्स। हाउ डज हैविंग टू मच ऑफ स्वीट, और वो भी होली मतलब एक ही दिन होता है, तो हमें लगता है भाई एक ही दिन है चलो भर भर के खा लेते हैं। दिवाली तो 3-4 दिन की फिर भी हो जाती है, तो हम लिमिट कर लेते हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। बट होली भी इज लाइक कि 1 डे का ही फेस्टिवल है, अब एक दिन भी ना खाए तो जिए कैसे हम। तो उस एक दिन में हम क्या करते हैं, ठूस लेते हैं जो भी मन में आता है, जो भी आता है सामने। वो एक दिन का एक ठूसना हमारे गट हेल्थ को किस तरह से इम्पैक्ट करता है? डेफिनेटली सी हार्श, मतलब ये सब चीजें हार्श रहती हैं उनके लिए। सो too much of sweets and too much of deep frying, too much of मतलब द अमाउंट जो कि हम, तो ये सारा गट हेल्थ के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। इनफैक्ट फॉर इंग्रेडिएंट्स कि ये सारी चीजें पूरी भी करती हो पर नेचुरल स्वीटनेस हो, मे बी यू कैन गो फॉर गुड़ और हनी, और जैसे बाइंडिंग के लिए यूज होता है तो उसके लिए भी एंड गुड़ आर गुड कैन ऑप्शंस। दीज लीड टू फूड पॉइजनिंग एज वेल? लाइक फूड पॉइजनिंग अक्सर हमने देखा होली पार्टी के बाद लोगों को मतलब फूड पॉइजनिंग हो जाती है, मतलब व्हाट कॉजेस फूड दिस फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग ऐसे होती है कि हम जब मार्केट से कोई चीज बाय करते हैं, वी नॉट श्योर वो कब बनी, तो एक्सपायरी वगैरह का आइडिया फेस्टिवल्स में कम ही लगता है, स्पेशली व्हेन आउटसाइड वेंडर्स आर यू नो कलेक्टिंग थिंग्स सर्विंग। तो फूड पॉइजनिंग का तो यही है कि जो टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड एंड द डिफरेंस इन टाइम व्हेन सर्व्ड, so if it is more than the recommended period, then definitely I think, because bacterial growth तो soon as 10 to 12 में start हो जाती है। कई सारे जैसे स्टाफ हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं ओके। बेसिकली। वो जो प्रिपरेशन ऑफ फूड है और जो सर्विंग टाइम है, कि जैसे ही फूड खाना है तभी सर्व हो। Otherwise, food poisoning is at any time when preparation and serving gap होता है, and it is not properly according to the recommended temperature. मैम व्हाट अबाउट प्रेग्नेंट वुमेन स्पेशली, उनके लिए इट्स नॉट कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप यू नो कलर्स से, खाने पीने से, फेस्टिविटी से दूर रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो प्रेग्नेंट वुमेन को क्या प्रिकॉशंस लेने I चाहिए? think pregnant women need to be especially cautious during Holi celebration. It's not that Holi is not for them, but they should be cautious. For example, whenever they are heading out for a Holi celebration, they must ensure that they are well fed, well hydrated already. मतलब आप fasting state में कभी भी घर से ना निकलें. Avoid over exertion. Take breaks during celebration. Take rest. Don't over self continuously. And a very, very important thing about pregnant women, most important, quite falls. So, damp, slippery floors or floors where there's a lot of water. So if you fall, then it's like really, it बैड, might ऑब्वियसली। collapse. तो फॉल्स को अवॉइड करना, बीच बीच में रेस्ट रहना, हाइड्रेटेड भी बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इन प्रेगनेंसी। डिहाइड्रेशन
causes a lot of hazard for the fetus. So being hydrated, being well fed, avoiding exertion, and avoiding falls. So अगर आप थोड़ा सा caution तो even pregnant women can enjoy their कुछ प्रिकॉशंस लेके आप एंजॉय करो, बट हाँ ज्यादा लाइक वो फ्लोर पे जाके स्पेशली जहाँ पे वाटर हो वो आपको अवॉइड करना चाहिए. अगेन मैम कमिंग बैक टू, क्योंकि होली है एंड ऑब्वियसली मिठाइयाँ तो हमने बात करी है, मिठाईज मेक दी होली फेस्टिवल स्पेशल अलॉन्ग विद द कलर्स. तो जो लाइक पीपल हु आर डायबिटिक स्पेशली उनके लिए, हाँ मतलब इंस्टेड ऑफ हैविंग दो शुगरी sweets, what can they switch to? What are some of the healthier options for them? See, diabetics के लिए key is moderation. I always that moderation is the key. So whenever they are going for any, then go for a small portion. Opt one single piece instead of full plate. So that is very, very, and they should be minding the type of eating. For example, gulab jamun hai ya jalebi ya so first they are deep fried and then they are mixed with the chashni of sugary syrup with high sugar content. So these type of mithais should be avoided. Instead, they can go for dry fruit laddus, for example. Have natural sweeteners like in that ke laddu. They can have yogurt parfait is a very very uh, delicacy that they can enjoy. Yogurt में आप चीजें ऐड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, nuts ऐड कर सकते हो. Then dark for that matter. तो उनको basically ये ध्यान mindful होना है. बहुत ज़्यादा extreme calories and extreme वो sweets avoid करनी है and they can consume in moderation. But एक्चुअली अभी तो बहुत सारे हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स भी एक्चुअली मार्केट में भी अवेलेबल हो गए हैं. तो yes, हम वो भी आई थिंक वी कैन ट्राई लाइक बेक्ड आइटम्स. आई थिंक घर में आजकल हर किसी के मतलब बेक्ड स्वीट्स एंड बेक्ड कुकीज मिलती है. तो आई थिंक आर दोज एडवाइजेबल, क्या वो हेल्दी होती हैं? डेफिनेटली बेक्ड मतलब कि आपका ऑयल कंटेंट बहुत कम हो गया. बेक्ड हो गया या एयर फ्राई या यूजिंग नॉन स्टिक कुकवेयर में जो हम बनाते हैं. तो नॉन स्टिक में कम ऑयल में यू कैन मेक पैटीज, कटलेट, टिक्कीज. Then baked में you can have baked matris, baked this gujiyas, baked parik, you have baked namkeen also. And air fryers are also a very good option because they give us those crisp samosas and kachori by just the ingredients with frying. So baked items are really in situations, especially for the overweight or diabetic who cut down on these. For everybody actually. पर अक्सर हमने देखा है कि लोग जो होते हैं, जो जैसे कि जिनको ये होती है मतलब जिनके हाई लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और वो दिवाली के और ये होली के वक्त, स्पेशली होली के वक्त बहुत सारी मिठाइयाँ वो लोग खा लेते हैं. तो क्या देयर इन दैट वन डे देयर लिपिड profiles can get deranged? Yes, definitely. We every day see triglycerides more than 700, more than 800, more than 1000. It's very, very common to have these levels of triglyceride and even LDL to some extent. Triglyceride is one thing. LDL plus imbalance होता ही है after fat, fat, fat. So yeah, lipid profile does salt, even sugar are very common after whenever because people they don't do it. So आप बोल रहे हो कि like people with cholesterol they need to take extra precautions and we make sure that they avoid oily food, क्योंकि immediately आपके वो LDL levels shoot up हो सकते Yes, हैं. definitely. And ma'am, what are some of the essential health tests that one should take after a holy party? कुछ लोग होते तो 2-3 दिन के लिए celebrate करते हैं होली. So immediately after the holy party or maybe a day after, which are some of the essential tests or parameters in the body that they should get checked for? Like I said, lipid profile is one thing that and your sugar
is the second thing. So sugar and lipid profile, तो कि आप already at some time of the other, then you should definitely go for these two tests. But you know, dehydration, अगर होली जैसे कि आपने कहा कोई 3-4 दिन तक हाँ एग्जैक्टली में, कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं मतलब आई नो बनारस एंड इस साइड में हमारे वाराणसी साइड में वृंदावन साइड में अक्सर एक एक महीने तक डिफरेंट डिफरेंट होलीज होती है हर एक जगह में लठमार होली कहीं हो रही है तो कहीं आपके वो बॉल्स के साथ वो होली खेल रहे हैं कहीं बस गुलाल के साथ वो खेल रहे हैं कहीं फ्लावर्स के साथ खेल रहे हैं तो हर जगह वो मतलब सेलिब्रेशन चल ही रही होती है ये होली कहने के लिए बस एक दिन का होता है बट जहाँ पे ये मेन फेस्टिवल्स होती है वहाँ तो लोग पूरे एक एक महीने भी सेलिब्रेट कर रहे हैं yeah. तो उनके लिए क्या हम सजेस्ट करें कौन से एसेंशियल हेल्थ टेस्ट हैं जो उन्हें लेना चाहिए एक बार ये फेस्टिविटीज ओवर हो जाए तो Basic metabolic test should be taken whenever, as you said, indulgences are very long. Then basic metabolic profile become important. More so because whenever we indulge into festivities for a very long period, for even say for 3 to 4 days, then dehydration is a common thing that sets in. Dehydration causes harm to the organs like even kidney, liver. So you need to take KFT, kidney function test and liver function test also in addition to your lipids and sugar tests. So these are the basic metabolic definitely go for whenever your indulgence. मैम अब जैसे होली पार्टीज में अक्सर क्या होता है जैसे आपने बोला कि कुछ लोगों में स्पेशली वुमेन में विटामिन डी एंड B12 की बहुत कमी होती है अक्सर हमने देखा है वुमेन हैव ऑस्टियोपोरोसिस लाइक आफ्टर 35-40 दे हैव जॉइंट पेन्स एंड सो जो लोगों को ऐसे जॉइंट पेन है हेल्थ इश्यूज है प्रॉब्लम्स है तो उनका मतलब क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है उनको See, when you have joint problems or any problem related to your skeletal system, then definitely heavy indulgences in the festivities can cause falls and they can cause imbalances. जैसे कि musculoskeletal impairment take a long time to repair. कि जो भी musculoskeletal defects होते हैं उनकी repair time बहुत superficial, cut separations ये सब फटाफट और मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज बहुत देर लगने में तो इट्स गुड टू बूस्ट योर चेक योर विटामिन आपकी इम्यूनिटी को इनडायरेक्टली बहुत अफेक्ट so you should have all the basic qualifiers in place उनके लिए and basic आपका जो balanced diet and everything recommended है they should be in place before very overindulgences or heavy exertions. Falls definitely need to be avoided, especially when you have joint pains or joint issues. आई थिंक इट वॉज अ वंडरफुल सेशन एक क्वेश्चन आया है मैम प्रेजेंट में हार्ट अटैक केस बहुत ज्यादा आ रहे हैं सो लाइक व्हाई इज इट सो व्हाई आर पीपल हैविंग सो मेनी हार्ट अटैक्स ये इश्यूज क्यों The first thing जो इंडिया में हम जानते because Indians are genetically very very predisposed to cardiac conditions and heart related conditions. We are becoming the heart problem of the world in addition to the diabetic capital which we already are and the dyslipidemic capital of the world which we are very तो बेसिकली इंडियन की जो जीन्स हैं उसके अंदर है कि डिजीज एक तो अर्ली सेटन होते हैं ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्रॉब्लम्स दे सेट इन वेरी अर्ली एज कंपेयर्ड टू द वर्ल्ड so even youngsters in India are atherosclerotic and they are more predisposed to strokes and cardiac because of that one reason. तो जेनेटिकली पोजिशन अगर है तो हमें अपनी लाइफस्टाइल और अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जो कि इंडिया में नहीं दिया जाता है बेसिकली अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल वो एक जरूरत ही नहीं एक नेसेसिटी है आज के टाइम में और जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन these together are the main reasons of strokes and cardiac. So it's very necessary to maintain a healthy lifestyle, exercise, and take balanced diet. All these things. So उसी से ही avoid हो सकता है if you take proper precaution and that is regular monitoring. हमें ये बहुत common है कि हम
हमें डायबिटिक डिसलिपिडीमिया और कार्डियक इश्यूज, तो बेटर है कि हमारी जो मॉनिटरिंग है वो भी एज से स्टार्ट और कंटिन्यू, so that can save before any serious impacts are there. I think it has been a wonderful session. हमने काफी चीजों के बारे में डिस्कस किया, and thank you so much, Dr. Manka, for joining in. It has been a wonderful session. Thank you so much. Thank you for all the insights you shared, and your audience watching us. Wishing all of you a very, very happy and colorful and healthy Holi. सेहत के रंग सेलिब्रेट कीजिए रेड क्लिफ के संग. Happy Holi to you and all the audience. Have a vibrant festival. Thank you so much, ma'am. Thank you everyone for joining us. Stay tuned for more updates.